My name is Mohammad Zishan from Punjab district, Rahim Yar Khan, Pakistan. Currently doing BS Chemistry from Khaja Farid University of Engineering and Information Technology, Rahim Yar Khan. My topic of discussion is cis-trans isomerism in disubstituted cycloalkanes, means stereoisomers of disubstituted cycloalkanes. इस तरह के 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन है, एग्जाम्पल है हमारे पास। तो हम कब कहेंगे कि ये सिस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोअल्केन है या फिर ये ट्रांस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन है। अगर दो मिथाइल ग्रुप्स मीन्स के डाइमिथाइल हैं, दोनों मिथाइल ग्रुप्स साइक्लोपेंटेन के साथ सेम बॉन्ड बनाएं, मीन्स के दोनों ही वेज्ड बनाएं या दोनों ही मिथाइल ग्रुप्स क्या बनाएं, डैश्ड बॉन्ड्स बनाएं विद द साइक्लोपेंटेन मॉलिक्यूल, that compound would be called the cis isomer, means this molecule, this compound in which two methyl groups are bonded to the cyclopentane by the wedged bond, means the same type of bonds between the two methyl groups and the cyclopentane. So we called this compound or this molecule as the cis isomer, means cis 1,2 dimethyl cyclopentane. Moving forward to the next example, here one methyl group is attached to the cyclopentane by the wedged bond, and the other methyl group is attached to the cyclopentane by the dashed bonds. That means two different types of bonds are involved. One is the wedged bond and other is the dashed bond. So this molecule would be the trans isomer, means के टू डिफरेंट मीन्स के दो मिथाइल ग्रुप्स टू डिफरेंट बॉन्ड्स के ज़रिए से अटैच्ड हैं। एक मिथाइल ग्रुप बैक पे चला गया और एक फ्रंट पे आ गया। दैट मीन्स दिस इज ए ट्रांस आइसोमर। इट्स नेम वुड बी ट्रांस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन। and as if A and B are the enantiomer, no, these are not the enantiomers, but these are diastereomers of each others. That is why we called them as collectively stereoisomers. Cis-trans isomers. अक्सर cis-trans isomers, अब हमने किस वजह से कहा कि ये cis-trans isomers हैं, बिकॉज के इनकी जो ओरिएंटेशन थी, मीन्स के 3D ओरिएंटेशन जो कि स्पेस में थी, वो क्या थी, ये डिफरेंट भी हो सकती है या फिर सेम भी हो सकती है। मीन्स के अगर दोनों वेज्ड बॉन्ड के ज़रिए से अटैच्ड हों या दोनों डैश्ड बॉन्ड मीन्स के बैक पे हों, तो दैट वुड बी सिस आइसोमर। और अगर एक फ्रंट पे हो और एक बैक पे हो, मीन्स के एक वेज्ड हो और एक क्या हो, बैक बिहाइंड, मीन्स के डैश्ड बॉन्ड के ज़रिए से अटैच्ड हो, दैट मीन्स दैट molecular compound would be the trans isomer. Cis isomer has two groups on the same side of the ring, and trans isomer has two groups on the opposite side of the ring. Look at this ring, which is the cyclopentane. Here is the methyl group that is attached. Here is also on the same side. That is why we called it as cis 1,2 dimethyl cyclopentane. Look at another example. Here one methyl group is attached on the one side and other is
located at the opposite side of this methyl group, so that would be called as the trans 1,2-dimethyl-cyclopentane. How to name disubstituted cycloalkanes? How to name means कि इनके IUPAC नेम्स किस तरह देने हैं। IUPAC नेम्स के साथ हम क्या मिला देंगे, ट्रांस या सिस। अगर उनकी जो ओरिएंटेशन है वो सेम है तो दैट वुड बी द सिस, और ओरिएंटेशन डिफरेंट दैट वुड बी द ट्रांस। Look at this example. CH3 methyl group is attached to the cyclohexane means by wedge bond, and here this methyl group is attached to the cyclohexane by the dashed bond, and here hydrogen by wedged and hydrogen by dashed means जो बॉन्ड हैं वो अपोजिट हो गए। अब होना तो ये चाहिए था कि इधर जो मिथाइल ग्रुप अटैच था वाइट बॉन्ड के ज़रिए से, इधर भी वाइट बॉन्ड ही होता, लेकिन अब ये वेज्ड है तो ये डैश्ड है, तो मींस के डिफरेंट बॉन्ड्स हो गए। एक फ्रंट पे, एक मिथाइल फ्रंट पे चला आया और एक बिहाइंड चला गया, एक हाइड्रोजन फ्रंट, एक हाइड्रोजन बिहाइंड। दैट मीन दैट एसोमर इज द ट्रांस एसोमर। नेम IUPAC नेम के साथ हम क्या कहेंगे, ट्रांस 1,4,1,4-dimethyl-cyclohexane. Look at this example. This methyl group is attached by the wedge bond, and also this one also by the wedge bond. Hydrogen by dashed and this hydrogen also by dashed means both hydrogen are present behind the benzene ring and two methyl groups are present on the front of the methyl group, methyl ring. That is why we call it as cis isomer, means cis 1,4-dimethyl-cyclohexane. इसी तरह हमने ये बताना है कि स्टीरोजेनिक सेंटर कितने हैं, मींस के साइक्लो अल्केन्स जो कि डाई सब्स्टिट्यूटेड हैं उनमें कितने स्टीरोजेनिक सेंटर हैं। याद रखें जो भी साइक्लो अल्केन डाई सब्स्टिट्यूटेड होगा वो तकरीबन गालिबन वो स्टीरोजेनिक सेंटर होगा। मींस के ये साइक्लो अल्केन इधर से डाई से सब्स्टिट्यूट हुआ और एक इधर से हुआ है, तो दैट मीन्स दो साइड से हुआ तो डाई सब्स्टिट्यूटेड, तो ये दोनों ही कार्बन जो कि मौजूद हैं इधर, ये क्या है, स्टीरोजेनिक सेंटर या फिर कायरल सेंटर्स हैं। बिकॉज के इस कार्बन के साथ ये ब्रोमीन, इस कार्बन के साथ ये रिंग, मीन्स के ये लिंकेज और ये लिंकेज, और इसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच्ड है, मीन्स के 4 डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एटम दैट अटैच्ड टू दिस कार्बन। दैट इज व्हाई दिस कार्बन is the heterogenic center. Also this one carbon is the heterogenic center here. Look at this example. So इसको अगर हम IUPAC नेम दें तो किस तरह देंगे, 1 मीन्स के 1 2 3 1,3-डाइब्रोमो साइक्लोपेंटेन। अब हमने ये बताना है कि सिस कौन सा है और ट्रांस कौन सा है। If both of the bromine atoms, the bromine ions are attached to the cyclopentane by the wedge bond, that cyclopentane, that disubstituted cyclopentane would be the cis isomer. If one is the bromine by attached by wedge bonds and other by dashed bonds, means के behind चला गया है एक और एक front पे आ गया है, तो means के different bonds हैं, means के orientation है space में, तो that is why that disubstituted cyclopentane would be called as the trans isomer, means trans 1,3-dibromocyclopentane. Are they the enantiomers of each other? No. This is because they are not the mirror images of each other. मिरर इमेजेस होना लाजमी है एनिशोमर के लिए। अब मिरर इमेजेस कैसे होती, ये जिस तरह वेज्ड है तो ये ब्रोमाइन भी वेज्ड बॉन्ड के ज़रिए से अटैच्ड होता। अगर इधर वेज्ड बॉन्ड भी हो जाता
तो तब भी वो उसका इनैंशियोमर नहीं होता, बल्कि वो क्या होता, मीज़ो कंपाउंड बन जाता। मीन्स कि अगर हम उधर से प्लेन ऑफ सिमेट्री गुजारें तो वो इक्वल हाफ्स में उसको क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। जिस तरह ये मैं अभी प्लेन ऑफ सिमेट्री गुजार रहा हूँ, तो ये लाइन सीधी नहीं ड्रा हुई, मीन्स के प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है उसको दो इक्वल हाफ्स में क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। तो इसी तरह मीन्स के अगर प्लेन ये क्या बन जाए, ये मीज़ो है जहाँ से मैंने प्लेन ऑफ सिमेट्री गुजारा है, और जो ये है ये मीज़ो नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे के क्या बन जाएंगे फिर, डाइस्टेरोमर्स। Why are they called so diastereomers? Because they are not the mirror images of each other and not superimposable to each other. So that is why they are the diastereomers of each other. Look at this disubstituted साइक्लोपेंटेन, मीन्स दोनों ब्रोमीन के एटम जो हैं वो साइक्लोपेंटेन के साथ जुड़े हुए हैं बाई वैक्ड बॉन्ड्स के ज़रिए से। तो ये अगर इन दोनों का जो मिरर इमेजेस होंगे ये है, ये दोनों अगर देखा जाए तो आइडेंटिकल हैं। सो दे आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, that is why they are superimposable. If they are superimposable, that mean they are the achiral. अगर ये achiral हैं तो that mean they are the meso compounds here. Meso compounds achiral, superimposable, and that is one mirror image. ये mirror images बना रहे हैं। Look at another one example here. One bromine is attached by the dashed bond, wedged bond, and other one by the dashed bond. और इसकी जो मिरर इमेज है वो ये है कि मीन्स कि इसको 180 डिग्री से रोटेट करें तो इस तरह आएगा। मीन्स कि ये ब्रोमाइन इधर चला जाएगा डैश्ड, और ये वेज्ड वाला इधर आ जाएगा। तो that are the mirror images of each other but not superimposable to each other. अगर ये वाला ब्रोमाइन भी वेज्ड बॉन्ड के ज़रिए से अटैच्ड होता, दोनों वेज्ड बॉन्ड के ज़रिए से अटैच्ड होते, तो वो आइडेंटिकल होने थे उसके मिरर इमेजेस, जैसे प्रीवियस स्लाइड में है। लेकिन इधर एक डैश्ड है और एक क्या है, वेज्ड है, तो इसका मिरर इमेज जो है वो बनेगा, और जो मिरर इमेज होगा वो इसके सुपर इम्पोजेबल नहीं होगा। दैट मीन दैट वन साइक्लोपेंटेन ये ट्रांस 1,3 साइक्लोपेंटेन डाइब्रोमो साइक्लोपेंटेन। Exercise is started and we have to tell about साइक्लिक मॉलिक्यूल्स। इनमें से कौन से हैं जो कि मीज़ो कंपाउंड्स हैं। मीज़ो कंपाउंड्स के लिए ये शर्त थी कि मीन्स कि अगर उसमें से प्लेन ऑफ सिमेट्री गुजारें, हाफ जो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करें, तो जो दो अलग होने वाले मीन्स के हिस्से हैं उसके वो सेम हों, जिस तरह ये हैं दो। इधर देखें जो अलग हो रहे हैं दो हिस्से, इनमें से एक के साथ क्या जुड़ा हुआ है, एक के साथ वेज्ड बॉन्ड है और एक के साथ क्या है, डैश्ड बॉन्ड है। मीन्स के जो दो हिस्से अलग होंगे वो सेम नहीं अलग होंगे, बल्कि वो क्या होंगे, तो डिफरेंट हिस्से अलग होंगे। ये हैं दो। तो ये जो है मीज़ो कंपाउंड नहीं है। हाँ, ये डाइस्टेरोमर हो सकता है, और मीन्स के जब इसका वेज्ड डैश्ड जो बॉन्ड है इसको मीन्स के वो किया जाए, डिस्टॉर्शन की जाए, और इसका मिरर इमेज जब बन जाए तो वो क्या हो जाएगा, इनैंशियोमर हो जाएगा। तो ये मीज़ो कंपाउंड नहीं है। क्या मॉलिक्यूल बी देखें, क्या ये मॉलिक्यूल मीज़ो कंपाउंड है? आंसर इज यस, बिकॉज के जैसे ही इधर से
प्लेन ऑफ सिमेट्री गुजरता है तो इसको जो है वो दो इक्वल हाफ्स में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। ये मीन के दोनों इक्वल हाफ्स के ही वेज बॉन्ड्स हैं, दैट मीन दैट इज द मीजो कंपाउंड। और ये दोनों आइडेंटिकल भी हैं, एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेजेस भी हैं। लुक एट द एग्जांपल सी। क्या ये मॉलिक्यूल मीजो कंपाउंड है? आंसर इज डेफिनेटली नॉट, बिकॉज के इसमें से हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है जो अलहदा होने वाले ग्रुप के साथ, और इस ग्रुप के साथ क्या अटैच्ड है, क्लोरीन। तो जो दो हिस्से अलहदा होंगे वो एक दूसरे से सेम नहीं होंगे एक दूसरे के, बल्कि वो डिफरेंट होंगे, वन विद हाइड्रोक्सिल वन विद क्लोरीन। तो आंसर इज नो, दिस इज नॉट ए मीजो कंपाउंड। हाँ, इसका मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 है कि ड्रा करें ऑल द पॉसिबल स्टीरियोआइसोमर्स फॉर ईच कंपाउंड। हर कंपाउंड के लिए मीन्स कि उसके एनंटियोमर या फिर डाइस्टीरियोमर हैं, तो उसी हिसाब से उनके क्या बनाएं, स्टीरियोआइसोमर्स। जो ये मॉलिक्यूल है इधर से प्लेन ऑफ सिमेट्री गुजारे तो दोनों इक्वल हाफ डिवाइड हो रहे हैं, तो मीन्स कि ये क्या है, मीजोमर है। ये ना तो ये स्टीरियोआइसोमर बन सकता है इसका, सॉरी, ना तो इसका एनंटियोमर हो सकता है, एनंटियोमर भी नहीं हो सकता, और डाइस्टीरियोमर भी नहीं हो सकता। मीन्स के डाइस्टीरियोमर भी इसका नहीं हो सकता। ये मॉलिक्यूल देखें बी, अब इसके साथ जो है मीन्स के ये सेंटर अगर देखेंगे ये और एक ये सेंटर, इसके साथ एक इस सेंटर को देखें तो इसके साथ एक मीथेन ग्रुप अटैच्ड है और ये लिंकेज अटैच्ड है, और इधर से ये लिंकेज अटैच्ड है, और इसके साथ एक हाइड्रोजन भी है। 4 डिफरेंट ग्रुप्स आर अटैच्ड, दैट मीन दैट कार्बन वुड बी दी स्टीरियोजेनिक सेंटर। ये कार्बन है, इसके साथ हाइड्रोक्सिल, ये लिंकेज और ये लिंकेज जुड़ी हुई है, और एक हाइड्रोजन है, मीन्स के 4 डिफरेंट ग्रुप्स आर अटैच्ड, दैट मीन दैट कार्बन आल्सो वुड बी दी स्टीरियोजेनिक सेंटर। दैट मीन्स कि इसके क्या बनेंगे, ये एनंटियोमर्स बनेंगे, ये एनंटियोमर्स बनाएंगे। ये बनाएंगे एनंटियोमर। तो क्या ये वाला मॉलिक्यूल सी है, इस मॉलिक्यूल में देखें कि प्लेन ऑफ सिमेट्री गुजर रहा है, दो इक्वल हाफ्स डिवाइड हो रहे हैं, तो दैट मीन ये ना तो एनंटियोमर बनाएंगे, एनंटियोमर भी नहीं बनाएंगे, और ना ही ये क्या बनाएंगे, डाइस्टीरियोमर बनाएंगे। ये एक दूसरे के क्या हैं, आइडेंटिकल हैं, और ये क्या हैं, मीज़ो हैं, मीज़ो कंपाउंड थे। मीन्स के एक दूसरे की मिरर इमेजेस बनाएंगे जो कि आइडेंटिकल होंगी। एग्जाम्पल 27 देखें। एग्जाम्पल 27 में जो है वो ये बताना है कि स्टेट हाउ ईच पेयर ऑफ कंपाउंड इज रिलेटेड, हाउ आर द एनंटियोमर, डाइस्टीरियोमर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स या आइडेंटिकल हैं। इसको देखते हैं। CH2OH है वेज बॉन्ड के ज़रिए, इधर जो है ये किसके ज़रिए से है, सिंगल बॉन्ड, सिंपल बॉन्ड है, और इधर हाइड्रोजन डैश्ड है, इधर भी हाइड्रोजन क्या है, डैश्ड है, ओके है। इधर जो मिथाइल ग्रुप सिंपल बॉन्ड के ज़रिए से था, इधर किस में आ गया, वेज के ज़रिए से। मीन्स के अब ये तो एनंटियोमर हो नहीं सकते। एनंटियोमर तो तब होना था कि जब इस मॉलिक्यूल को 180 डिग्री से रोटेट करते और उसका मिरर इमेज होता जो कि नॉन सुपर इम्पोजिबल था। क्या ये आइडेंटिकल है? आइडेंटिकल भी नहीं है। आइडेंटिकल तब होना था कि जब इधर जो था CH2OH ग्रुप, मीन्स के मिथानॉल इधर जुड़ा होता वेज बॉन्ड के ज़रिए से, और ब्रोमीन की जगह मीथेन जुड़ा होता, तो ये आइडेंटिकल होना था। नॉट आइडेंटिकल, नॉट एनंटियोमर्स ऑफ ईच अदर। अब बात ये आती है कि
क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स हैं? आंसर इज़ नो। इनके आईयूपीएक नेम्स सेम हैं, मीन्स के 1 2 3 1 2 3। तो अब लास्ट बात जो आती है वो क्या आती है? डाइस्टेरोमर्स। यस, दे आर द डाइस्टेरोमर्स ऑफ ईच अदर। वाई आर दे डाइस्टेरोमर्स ऑफ ईच अदर? बिकॉज नो मिरर इमेजेस, मीन्स के नो मिरर इमेजेस नहीं बनाते एक दूसरे के साथ, और ना ही ये क्या करते हैं? सुपर इम्पोज होते हैं। मीन्स के अगर मिरर इमेजेस तो तब बनती थी ना कि इसको 180 से रोटेट करते, तो एग्जैक्टली इधर भी मीन्स के ये CH2 है वो इधर होता तो इधर वाइट बॉन्ड के ज़रिए से होता। मिरर इमेजेस ना तो आप ये सुपर इम्पोज हो सकती बिकॉज के ना तो ये आइडेंटिकल हैं ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, तो जस्ट ये क्या हैं? डाइस्टेरोमर हैं। मॉलिक्यूल बी देखते हैं, इसमें सारी ज्योमेट्री सेम है। इसमें 2 मिथाइल जो है सेकेंडरी मीन्स के अल्केन जुड़ा हुआ है वो वेट के ज़रिए से, सेकेंडरी अल्केन इधर जो जुड़ा हुआ है वो किससे जुड़ा हुआ है? डैश्ड के ज़रिए से। तो ये मीन्स के फ़र्क आ गया इसके अंदर। क्या इनके आईयूपीएक नेम डिफरेंट हैं? नो, आईयूपीएक नेम सेम हैं, मीन्स के वही मीन्स के वन पोजीशन पर ही है, ये भी 1 पोजीशन पर है। सेम कॉन्स्टिट्यूशनल हैं। क्या ये आइडेंटिकल हैं? आइडेंटिकल नहीं है क्योंकि इसमें एक वेट है और एक क्या है? डैश्ड है। क्या ये एनेंशियोमर्स हैं एक दूसरे के? नो, एनेंशियोमर की शर्त यह है कि मीन्स के इसकी मिरर इमेज होती है, इसको 180 से रोटेट करते तो ये वाली साइड इधर हो जाती और वेज्ड बॉन्ड ही होता। लास्ट बात क्या रह जाती है? डाइस्टेरोमर्स। यस, दे आर दी डाइस्टेरोमर्स ऑफ ईच अदर बिकॉज ये क्या हैं? एक दूसरे की ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस, ना तो एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं और ना ही ये क्या करते हैं? सुपर इम्पोज होते हैं एक दूसरे के ऊपर। मॉलिक्यूल सी देखते हैं, इसमें जो 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाइट बॉन्ड के ज़रिए से हैं और 2 हाइड्रोक्सिल, एक वाइट है और एक क्या है? डैश्ड है। इसका देखें 1 पोजीशन 2 कार्बन और ये 3 और ये क्या है? 4 1। इधर देखें 1, ये 2 है और ये क्या है? 3। मीन्स के हाइड्रोक्सिल ग्रुप 1 3 पोजीशन पर है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप 1 4 पोजीशन पर है। मीन्स के आईयूपीएक नेम इनका क्या हो गया है? डिफरेंट हो गया है। डिफरेंट आईयूपीएक नेम्स मीन दैट के कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर हैं। कौन से हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल। अब क्या ये एनेंशियोमर्स हैं? एनेंशियोमर भी नहीं है। और क्या ये आइडेंटिकल हैं? आइडेंटिकल भी नहीं है। हाँ, ये डाइस्टेरोमर भी हैं बिकॉज के ये मिरर इमेजेस भी नहीं है एक दूसरे की और सुपर इम्पोजेबल भी नहीं हो सकते। लुक एट द एग्जांपल डी। हियर हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर अटैच्ड एट the 1 3 position 1, here is also the 1 3, so these are not the constitutional isomers. Are they enantiomers of each other? No, enantiomers, if they would be enantiomers of each other on this molecule also there would be the wide bond of the hydroxyl to the cyclohexane. So not enantiomer, not constitutional, not identical, these are also the diastereomers. ये भी डाइस्टेरोमर्स हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स हैं, और ये जो हैं ये भी डाइस्टेरोमर्स ही हैं। अब कहा जा रहा है कि ड्रा द स्ट्रक्चर फॉर ईच कंपाउंड यूजिंग वेजेस एंड डैशेस। वेजेस और डैशेस इस्तेमाल करते हुए हर एक कंपाउंड का क्या बनाएं? स्ट्रक्चर बनाएं। सिस है 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन है। अब साइक्लोप्रोपेन है उसके साथ ये सिस है
मीन्स के 2 मिथाइल जुड़े हुए हैं। तो अगर ये सिस है तो इधर दोनों बांड ही कौन से होंगे, या तो डैश्ड होंगे या तो वैज्ड होंगे। मैं इधर जो बना रहा हूँ दोनों बांड, वो क्या बना रहा हूँ, वैज्ड बांड बना रहा हूँ। तो ये 2 मिथाइल जुड़े हुए हैं, 1, ये 1 पोजीशन है, ये कौन सी पोजीशन है, 2 पोजीशन है। मीन्स के सिस 1,2 डाईमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ये प्रोपेन है। अगर कहा जाए कि ट्रांस बनाएं 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन, तो साइक्लोपेंटेन बना रहा हूँ, यह साइक्लोपेंटेन है। इसके साथ क्या जुड़ना है कि नंबर 2 पोजीशन पर मिथाइल है। फ़र्ज़ करें कि ये क्या है, इधर डैश्ड बॉन्ड को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मिथाइल से। मीन्स के ये मिथाइल जुड़ा हुआ है और 2 पोजीशन पर है, और 1 पोजीशन जो है वो मैं किससे बना रहा हूँ, वैज्ड बॉन्ड, ये वैज्ड बॉन्ड है। इसके साथ क्या है, इथाइल ग्रुप है। मीन्स के इथाइल ग्रुप है। एक डैश्ड मिथाइल डैश्ड के ज़रिए से है, इथाइल वैज्ड के ज़रिए से है। मीन्स के 2 डिफरेंट बॉन्ड्स हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे, ट्रांस कहेंगे। और ये ट्रांस है 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन है, ये ट्रांस है। ये क्या है, सिस 1,2 डाईमिथाइल साइक्लोप्रोपेन है, और ये पेंटेन है। 4.29 है। इनमें उन्होंने कहा है कि ये चेयर कन्फॉर्मेशंस हैं, इनमें से बताना ये है कि ये सिस है या फिर ट्रांस है। जो चेयर कन्फॉर्मेशंस हैं उनमें ये बात आती है कि एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होते हैं। एक्सियल और इक्वेटोरियल अप भी होते हैं और डाउन भी होते हैं। अगर मीन्स के एक्सियल दोनों जो हैं वो क्या हो, अप हो, या फिर एक एक्सियल अप हो दूसरा इक्वेटोरियल अप हो, तो तब भी हम क्या कहेंगे, सिस कहेंगे। अगर दोनों एक्सियल डाउन है या एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल डाउन है, तो तब भी वो क्या होगा, सिस होगा। मीन्स के सिमिलर उनकी क्या होगा, प्लेन होगा। और ट्रांस क्या है, एक एक्सियल अप हो और एक एक्सियल क्या हो, डाउन हो, या एक एक्सियल अप हो और एक इक्वेटोरियल डाउन हो। मीन्स के तब भी वो क्या होगा, ट्रांस होगा। अब इधर ये इक्वेटोरियल है। मीन्स के अब एक्सियल और इक्वेटोरियल का कैसे पता लगेगा, अगर कोई बॉन्ड अलोंग एक्सिस, जैसे ये एक्सिस जा रहा है, इसके एक्सिस के अराउंड ही अलोंग ही जाए तो ये एक्सियल है। अब ये वाला जो बॉन्ड है हाइड्रोक्सिल जिसके साथ जुड़ा हुआ है, ये एक्चुअली ऊपर जा रहा था हाइड्रोजन की तरफ, लेकिन ये बेंड हो गया। मीन्स के इस तरह बेंड हो गया 180 डिग्री से। तो ये क्या बना दिया इसने, इक्वेटोरियल बना दिया। अब मैं रिप्रेजेंट करूं, मीन्स के इनमें से एक्सियल कौन से हैं और इक्वेटोरियल कौन से हैं। जो रेड वाले हैं वो एक्सियल होंगे, और जो मीन्स के ग्रीन वाले होंगे वो इक्वेटोरियल होंगे। ये एक्सियल बनाया मैंने, डाउन है ये एक्सियल, और ये एक्सियल है डाउन, और ये एक्सियल अप है। ये एक्सियल हाइड्रोजन का है, ये भी अप है। ये एक्सियल हैं सारे। अब बताने लगा हूँ किसके, इक्वेटोरियल के। इक्वेटोरियल एक तो ये है इक्वेटोरियल, एक ये डाउन है और ये अप है इक्वेटोरियल, ये भी अप है इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल क्या है, डाउन है, और ये इक्वेटोरियल क्या है, अप है, और ये इक्वेटोरियल क्या है, डाउन है। मीन्स के 1 2 3
4 5 और एक और है, मीन्स के 6 जो ये जो एक है, एक 6 एक्सियल क्या है, वो 6 एक्सियल हैं और 6 क्या है, इक्वेटोरियल हैं। ये एक्सियल एक एक्सियल क्या है, मीन्स के डाउन है। तो 1 2 3 4 5 और ये 6, इसी तरह 1 2 3 4 5 6 क्या है, एक्सियल अप डाउन है, सॉरी 6 इक्वेटोरियल अप डाउन है और 6 एक्सियल भी अप और डाउन है। अब हमने क्या बताना है कि इनमें से सिस कौन सा है और ट्रांस कौन सा है। दोनों, ये हाइड्रोजन एक्सियल अप है, ये हाइड्रोजन भी एक्सियल अप है। ये हाइड्रोक्सिल जो है वो इक्वेटोरियल डाउन है, ये हाइड्रोक्सिल भी इक्वेटोरियल डाउन है। मीन्स के दोनों हाइड्रोक्सिल इक्वेटोरियल डाउन है और दोनों हाइड्रोजन जो है वो एक्सियल अप हैं। दैट मीन्स सेम प्लेन पे हैं, सेम ओरिएंटेशन में है, तो ये क्या है, सिस है। और इसमें देखें कि एक क्लोरीन इक्वेटोरियल डाउन है और एक इक्वेटोरियल अप है, और एक हाइड्रोजन इक्वेटोरियल अप एक्सियल अप है और एक हाइड्रोजन एक्सियल क्या है, डाउन है। मींस के एक हाइड्रोजन एक्सियल अप, एक एक्सियल डाउन, एक क्लोरीन इक्वेटोरियल अप, एक इक्वेटोरियल डाउन, मींस के अपोजिट कन्फर्मेशन है। दैट मीन्स ये क्या है, ट्रांस हैं। एंड लुक एट दी नेक्स्ट एग्जांपल। इसमें एक ब्रोमीन अप है, एक्सियल अप है, और एक ब्रोमीन इक्वेटोरियल डाउन है। एक हाइड्रोजन एक्सियल अप है और एक हाइड्रोजन जो है वो इक्वेटोरियल डाउन है। ये भी अपोजिट कन्फर्मेशन है, तो ये भी क्या होगा, ट्रांस होगा। लुक एट द एग्जांपल 4.30। क्वेश्चन इज हेयर, draw cis 1,3-dimethyl cyclohexane, and we have to tell about which conformer is the more stable. Dimethyl cyclohexane. I am drawing the structure of dimethyl cyclohexane here. This is the dimethyl cyclohexane, and I have to draw cis 1,3-dimethyl cyclohexane. So इक्वेटोरियल अप पे है मिथाइल 1 पोजीशन 2, और इधर मैं इक्वेटोरियल अप पे एक और मिथाइल ड्रा करूँ, मीन्स के 1 पोजीशन 2 और ये पोजीशन 3। तो ये क्या है, सिस आइसोमर है, और ये कौन सा है, सिस 1,3-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। मोर स्टेबल कन्फर्मेशन तब होगी जब वो इक्वेटोरियल पे होगा। अगर वो मीन्स के एक्सियल पे आता है, इधर एक्सियल पे, ये वाली साइड पे, तो क्योंकि साथ वाले जो हाइड्रोजन एटम्स हैं जो ये 2 पे हैं और 3 पे हैं, इनके साथ इनकी स्ट्रेन हो जाती है। स्ट्रेन मीन्स के पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी इनकी बढ़ जाती है आपस में। इस वजह से ये क्या हो जाएंगे, लेस स्टेबल हो जाएंगे अगर एक्सियल पे बनेंगे। इसलिए जो इक्वेटोरियल पे मीन्स के बेंड स्ट्रक्चर पे जब आ जाते हैं, थोड़ा दूर हो जाते हैं मीन्स के साथ वाले एटम्स से, तो इस वजह से उनमें स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। दैट मीन दैट इज़ द मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मेशन। कंसीडर 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन है। इसी तरह मीन्स के इसके वो बनाने, सिस बनाने हैं और ट्रांस भी बनाने हो, तो इधर से 1,3 मैंने इक्वेटोरियल बनाया है, तो इक्वेटोरियल की बजाय मैं एक्सियल डाउन कर दूं, तो ये क्या बनेगा, 1,3 ट्रांस बनेगा डाइमिथाइल। इधर तो 1,2 पूछा गया है, तो ये 1 है, और पोजीशन 2 पे जो है मीन्स के मैं एक्सियल या इक्वेटोरियल बना दूं, तो क्या बनेगा, 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन बनेगा।
अगर मैंने सेस बनाना है, क्योंकि ये इक्वेटोरियल अप है तो मैं एक्सियल अप बना दूं, तो दोनों मीन्स के अप हैं तो सेस बनेगा। अगर मैं इक्वेटोरियल डाउन बना दूं तो ये क्या बनेगा, ट्रांस बनेगा। और 1 2 में से कौन सा सेस ज़्यादा स्टेबल है या ट्रांस? क्योंकि इसकी कन्फर्मेशन इस तरह है कि ये ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होगा, बिकॉज के एक बैंड है और एक एक्सियल है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। अगर मीन्स के दोनों ही क्या हो, मीन्स के एक इक्वेटोरियल अप हो और एक इक्वेटोरियल क्या हो, डाउन हो, तो उनके दरमियान स्ट्रेन ज़्यादा होगी तो लेस स्टेबल होगा, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। और अगर मीन्स के ये भी है कि एक इक्वेटोरियल अप हो और एक्सियल अप हो, और एक और भी है मीन्स के एक्सियल डाउन हो और एक्सियल अप हो, ये इधर से यूं हो, तो ये भी ट्रांस है। मीन्स के एक अप है और एक क्या है, डाउन है, ये भी मोर स्टेबल है। एक इक्वेटोरियल अप, एक्सियल अप या एक्सियल अप एक्सियल डाउन, ये भी ट्रांस है, दोनों ट्रांस हैं, तो ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होगी किसके केस में, 1 2 डाईमिथाइल के केस में, जबकि 1 3 डाईमिथाइल के केस में सेस फॉर्म जो है उसकी ज़्यादा वो होगी, स्टेबल होगी। क्वेश्चन है 6.28। हमने ये बताना है कि अमीनो एसिड है, इसके मीन्स के उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक बताए गए हैं टेबल के नीचे। एस एलानिन है, अल्फ़ा मीन्स के स्पेसिफिक रोटेशन इसकी जो है वो पॉजिटिव 8.5 है, और मेल्टिंग पॉइंट इसका जो है 297 डिग्री सेल्सियस है। अब इसका जो इनेंशियोमर है वो क्या है, आर है, आर एलानिन। क्या इसका मेल्टिंग पॉइंट सेम होगा इसके या डिफरेंट होगा? जैसे कि मैंने पहले बताया कि इनेंशियोमर की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट सेम होती हैं, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट एग्जैक्टली वही 297 ही होगा। और इसका रेसिमिक मिक्सचर जो इन दोनों भी इक्वल अमाउंट्स का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? जो रेसिमिक मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट होता है फ्रॉम देयर कंपोनेंट्स आर और एस से, तो इनसे डिफरेंट होगा। क्वेश्चन सी है कि ऑब्जर्व्ड रोटेशन क्या होगी, मीन्स के रिकॉर्डेड अंडर द सेम कंडीशंस एज द रिपोर्टेड रोटेशन ऑफ एस एलानिन। तो ऑब्जर्व्ड रोटेशन का जो फार्मूला है वो ये है कि स्पेसिफिक रोटेशन is equal to observed rotation divided by c multiply by length of the polarimeter, जिसके अंदर वो सैंपल है और उस सैंपल की क्या कॉन्सेंट्रेशन मालूम हो, उस पोलरीमीटर की लेंथ मालूम हो, और हमारे पास ऑब्जर्व्ड रोटेशन दी गई है वो स्पेसिफिक रोटेशन दी गई है 8.5 है, इधर 8.5 आएगा स्पेसिफिक रोटेशन की जगह, और इधर उस सैंपल की कॉन्सेंट्रेशन जो कि स्टैंडर्ड होती है और उस ट्यूब की लेंथ हमें मालूम हो जाए तो हमने ये फाइंड करना है, वो हम फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द ऑब्जर्व्ड रोटेशन ऑफ ए रेसिमिक मिक्सचर ऑफ आर एंड एस। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि एनेंशियोमेरिक एक्सेस इज इक्वल टू मीन्स के observed rotation of a racemic mixture divided by the observed rotation of a pure enantiomer। अब इसमें से हमारे पास enantiomeric access कैसे आएगी, मीन्स के 75% एक एस enantiomer है और 25 उसका आर enantiomer है। 75 - 25 तो 50, उस 50 जो है उसकी क्या है, enantiomeric access है 50%, और हमने ए फाइंड करना है किसकी, मिक्सचर की, और हमारे पास ऑब्जर्व स्पेसिफिक रोटेशन किसी एक प्योर एनेंशियोमर की कितनी है, वो 8.5 है।
अब 8.5 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ऑब्जर्व्ड रोटेशन आ जाएगी किसकी, रेसिमिक मिक्सचर की। क्वेश्चन ई है, इसमें हमने ये बताना है कि लेबल ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव कब होगा, जब वो रोटेट करेगा प्लेन पोलराइज लाइट को, अगर रोटेट नहीं करेगा तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो सबसे ज़्यादा एक्सेस तो इसी की पाई जाती है, तो सबसे ज़्यादा एक्टिव यही होगा। और ये बहुत कम ऑप्टिकली एक्टिव होगा बिकॉज इसकी सिर्फ 25% एक्सेस है। हाँ, ये है कि जो इसका टोटल जो रेसिमिक मिक्सचर है वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं करेगा, लेकिन अगर करेगा भी सही तो आर इनएंशियोमर की वजह से करेगा बिकॉज कि ये ज़्यादा एक्सेस में है। क्वेश्चन क्या है 33, कंपेयर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द 3 स्टीरियोआइसोमर्स ऑफ 1,3-डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन। मीन्स के इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करना है। अब इनमें से देखना यह है कि इनएंशियोमर कौन से हैं और डाइस्टीरोमर्स कौन से हैं। अगर वो आपस में इनएंशियोमर्स हैं तो डेफिनेटली उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। अगर वो डाइस्टीरोमर्स हैं आपस में तो उनका आपस में फ़र्क होगा। उनको मीन्स के उनकी फिज़िकल केमिकल फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स और रोटेशन वगैरह में फ़र्क है। Look at the example A and example B. Here methane group is attached by the white bond, and here by methane by white bond, and here methane by dashed, and here methane by dashed. Means के ये एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेजेस हैं और नॉन सुपर इम्पोजिबल हैं। दैट मीन्स ये क्या हैं, एक दूसरे के इनएंशियोमर हैं। और ये जो है चूँकि प्लेन ऑफ सिमेट्री गुजरता है और इनमें से किसी एक कार्बन एटम की जो बॉन्ड हैं उनको चेंज किया गया है। मींस के डैश्ड को किस में चेंज किया गया है, बैक्ड बॉन्ड में। तो दैट मीन्स जो ये क्या है, डाइस्टीरोमर है। मीन्स के इन दोनों का ए और बी के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सेम होंगे। उनकी मीन्स के उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा और उनकी जो रोटेशन है वो भी सेम ही होगी। मीन्स के जिस तरह इसकी 8.5 है रोटेशन, तो डेफिनेटली आर की भी 8.5 ही होगी। मीन्स के स्पेसिफिक रोटेशन। और इसी तरह इनकी भी आपस में रोटेशन जो है वो ऑब्जर्व्ड रोटेशन क्या होंगी, जो जिस डिग्री से दोनों एक ही डिग्री से रोटेट करेंगे, बट उनके साइन का फ़र्क होगा। जो डीएसओआर होगा मीन्स के डेक्सो रोटेटरी, वो प्लेन पोलराइज्ड में रोटेट करेगा उसको इस तरह क्लॉकवाइज। जो लीवो रोटेटरी होगा वो काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा।